श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसह कुरसह झटिया। तुध डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सचा पातशाह, सिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, कबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा। एको सेवी सदा थिर साचा, दूजै लागा सब जग काचा। एको सेवी सदा थिर साचा, दूजै लागा सब जग काचा। गुरमति सदा सच सालाही, साचे ही साच पतीजै है। तेरे गुण बहुते मैं एक न जाता, आपे लाए लए जग जीवन दाता। आपे बख्शे दे वडियाई, गुरमत एहु मन भीजै है। माया लहर शब्द निवारी, एहु मन निर्मल होमै मारी। सहजे गुण गावै रंग राता, रसना राम रवीजै है। मेरी मेरी करत विहाणी, मन मुख ना बूझै फिरै इयाणी। जम काल घड़ी मोहत निहाले,
ਅਨ ਦਿਨ ਆਰਜਾ ਸੀਜੈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾ ਬੂਝੈ ਫਿਰੈ ਇਆਣੀ। ਜਮ ਕਾਲ ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਨਿਹਾਲੇ ਅਨ ਦਿਨ ਆਰਜਾ ਸੀਜੈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਸਾਚਾ, ਦੂਜੈ ਲਾਗਾ ਸਭ ਜਗ ਕਾਚਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 1049 ਅੰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਹਨ, ਔਲੀਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਸਾਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਉਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਸੇਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਸਾਚਾ, ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦੀਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਲਾਗਾ ਸਭ ਜਾ ਕਾਚਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਬੰਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਕੱਲੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਜਗਤ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ, ਸਾਚੇ ਹੀ ਸਾਚ ਭਤੀਜੈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਤੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
तेरे गुण बहुते मैं एक न जाता। आपे लाए लए जग जीवन दाता। अगली पंक्ति च गुरु पातशाह बख्शिश करते हैं, जो सतगुरु जी ने आख्या ना कि उस मालक दे गुण गा के जो मालक पती जाता खुश हो जाता है, कहते परमात्मा में किन्ने गुण ने। अगला सवाल करता पातशाह नूं, गुरु अमरदास पातशाह महाराज नूं अगला सवाल कर दिता कि सतगुरु जी जिस परमात्मा दे गुण गाउण दी आप जी गल करदे हो, उस मालक दे विच किन्ने कु गुण हन? ते सतगुरु फरमान करदे कि तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाता। हे परमात्मा तेरे विच बहुत गुण हन। गुण का अर्थ होंदा उपकार। तीन प्रकार के काम मन्ने गए ने। एक होंदा कार, एक होंदा उपकार, एक होंदा परोपकार। पहली है कार, अपने परिवार की पालना पोषण हित आपां सारे दसां नूहां दी किरत करते हैं। कोई नौकरी चाकरी करता, कोई फैक्ट्री चलाता, कोई दुकानदारी चला रहा है, तो सारे कोई किरत खेती कर रहा है। ये अपनी कार हो गई अपने परिवार की पालना पोषण लई। दूजा हुंदा उपकार, एक दूजे नूं आपां जाणदे होईए। मानो मैं तुहानूं जाण, तुसीं मैनूं जाणदे हो, मेरा कोई कारज अड़ गया, तुसीं विपता दे समय मेरी मदद कर दी जां मैं तुहाडी मदद कर दित्ती, इहनूं कहंदे ने उपकार। कि फलाणे उत्ते उपकार कर दिता, फलाणे दी मदद कर दित्ती। ते तीजा है परोपकार, पराए दा भला करना। जाणदे भी ना होईए पराए नूं ते भला करन लई गुरु से अगे तैयार हो जाना। ये गुण सतगुरु जी ने अपने खालसे विच पैदा किया। कलगियां वाले पातशाह ने पराए दा भला करन लई खालसा हर तत्पर रहिंदा है। जदों गजनी दे बाजारां दे विच हिंदुस्तान दीयां बहु बेटियां नूं टके टके भाव बेचिया जांदा सी, इत्थों गुलाम बना के कैद करके लिजा रहे सन, ते सिंह कहंदे प्रशादा छकदे सन। खबर पहुंची है कि गजनी दे बाजार वालों हमलावर इस तरह हिंदुस्तान दी बहु बेटियों लिजा रहे ने, ते ਸਿੰਘਾਂ ने उस समय प्रशादा छकना छड़ दिता सी। कहण लगे नहीं, प्रशादा बाद छकांगे, पहला उन्हां बहु बेटियां नूं उन्हां तो आज़ाद कराना है। जाके हमला किया ते गुरु सवारिओ जालमां नूं भजा दिता ते बहु बेटियां नूं घर घर पहुँचाना कीता सी। हुण किसी नूं जान पहचान नहीं है, पर मदद लई तैयार हो गए। खालसे का कोई रिश्तेदार नहीं सी, क्योंकि भैन है भरा है। ते गुरु कलगियां वाले पातशाह ने ऐसी कृपा की है कि खालसे परोपकार वाला गुण पैदा करता। तो इस तरह सतगुरु महाराज जी फिर जो खालसा हर एक की मदद लिए तैयार हो गया। तो गुरु पातशाह खुद परोपकारी सी, आप सतगुरु परोपकार करते हैं। तो इस करके ये तीन प्रकार के काम ने, कार, उपकार ते परोपकार। ते परमात्मा विच इन्ने गुण ने, पता नहीं किन्ने साडे उत्ते परोपकार कीते वाहिगुरू ने, जिहदी गिणती नहीं की जा सकती है। ते सतगुरु कहंदे तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाना। हे वाहिगुरू तेरे परोपकार बहुत ने। परोपकार परमात्मा ने किवें कीते देखो, सानू मनुखा दी ही बख्शिश की। 84 लाख जूना विचों ये मनुखा दी ही मिली है। ये भी गुरु दा परमेश्वर दा परोपकार है। फिर उस तो बाद
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਗੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ, ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਦੀਜੈ। ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਪੇ ਲਾਏ ਲਏ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਹੋ ਮਨ ਭੀਜੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ ਦੇਖੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुर दे नाल कुछ कुछ सिख ने। राजा हरी चंद 22 धार दे राजियां विचों हरी चंद हडूरीआ। राजा हरी चंद ने हजारां दी फौज है अपने सिपाहियां दे सहित गुरु कलगियां वाले पातशाह नूं घेरा पा लिया। 3-4 सिंह सतगुर दे नाल हन ते घेरा पा लिया। विचकार सतगुरु आले दुआले फौजां ते हरी चंद राजा खिड़खड़ा के हसदा ते कलगियां वाले पातशाह नूं हरी चंद राजा कहन लग्या कि गुरु गोबिंद सिंह जी हुण कोई तुहाडा बचण दा उपाय नहीं है, इत्थे कोई ढंग तरीका नहीं चलेगा, जोर नहीं चलेगा। देखो किन्नी तकड़ाई कर दिती है। मेरे कोल हजारां दी तादाद विच सैना है, सामने मैं बड़ा योधा हाँ, मेरे इहो जे तीर ने अज तक मेरा कोई भी निशाना खाली नहीं गया। तुसीं इंज करो, मेरे उत्ते वार करना करो। हरी चंद राजे ने आखना कीता ते कलगीधर पातशाह कहन लगे, जिहड़े सतगुरु कहन लगे जिहड़े फकीर दी जिहड़ा फकीर दा वीर रस है, सतगुरु कहंदे ने ये शांत है, हाले फकीर शांति दे विच है। इस करके हे राजन असीं तैनूं मौका दिंदे आ, तू साडे उत्ते वार कर। जे मैं वार कीता, कलगीधर पातशाह कहन लगे, फिर तू आखेगा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मैनूं वार करन दा मौका ही नहीं दिता। ते राजा हरी चंद जो सुनिया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे ने तू वार कर, बड़ा खुश होया कि मैं एक वार करांगा, एक वार दे नाल ही सतगुरु कलगियां वाले पातशाह नूं खत्म कर देंगा। ते सोचदा है तो फकीर ही है, एवं ने इधर बादशाह जैसे पोशाक पहन ली है, सोहनी कलगी जी का सीस उत्ते लाई हुई है, इनू जंग जोधा की पता, इनू कुछ भी नहीं आउंदा। इनू ये नहीं पता सामने राजा खलोता हरी चंद हडूरीआ ते एक तीर मारेगा ते मेरे तीर तो कोई अज तक बच नहीं सकिया। कहते ने गुरु सवारे उस समय राजा हरी चंद ने अपने भत्थे चो तीर कढ़िया, सतगुरु कलगियां वाले पातशाह दे छाती का निशान, सीने का निशाना ला के वो तीर छड्डिया है। ते जदों तीर सतगुरु महाराज दे कोल आया ते उत्तों दी कोल आके उत्तों दी लंघ गया। सारे जिन्ने भी सिपर सलार खलोते ने, जिन्नी इहदी फौज है, बड़े बड़े सैनापति सन, वो देख के हैरान हो गए कि अज तक हरीचंद राजे का कोई वार खाली नहीं गया, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्ते वार पहला वार किया ते वार खाली चलिया गया। जदों हुण वार खाली गया, हरीचंद राजे दे मन अंदर डर पैदा हो गया ते सोचदा कि जंग की रणनीति ये कहती है कि मैनू गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पहला वार करन दा हुक्म किया, पहला वार मैं किया है। हुण रणनीति ये कहती है कि अगे हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज दूजा वार करनगे। ते मैं सुनिया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जिहड़ा वार है कदे खाली नहीं जाता। जे सतगुरु जी हुण इत्थे वार करनगे, हो सकदा सतगुर दे तीर नाल मैं जख्मी भी हो सकदा हाँ, मेरी मौत भी हो सकती है। इस तरह डर पैदा हो रहा, पर जोधा सी कहन लग्या कि गुरु गोबिंद सिंह जी
हुण तुहाडी वारी है, तुहाडी वारी है, तुसी हुण वार करना करो। ते कलगीधर पातशाह कहन लगे कि हाले भी फकीर दी बीर रस नहीं जागिया। कहंदे हाले भी फकीर दी फकीरी जिहड़ी है ना, कहंदे ये मानो नदी दे च बड़े ठंड दे विच सुत्ती पई है, हाले नहीं जागिया कि अरी चंद तैनू मौका दिंदे तू दूजा वार करना कर। ते हरी चंद बड़ा खुश होया, जिथे पहला डर सी कलगीधर पातशाह दा कि हुण मैनू दूजा मौका मिल गया। फिर विचारदा कि देखो इनू तां राजनीति बिल्कुल नहीं आउंदी है, एक बार मेरा खाली गया, दूजा तां खाली नहीं जान लग्या। मैनू मौका दिता, मैं एक तीर मारांगा ते सतगुरु नू खत्म कर दियांगा। मन च विचार आई, कहंदे पत्थे चों तीर कढिया, तीर कढ के ये विचार कीती कि सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे घोड़े नूं पहलां मैं खत्म करना करा। ये घोड़े तो थले डिगणगे, फिर मैं अपने शास्त्र नाल इहनूं खत्म कर दियांगा। कहते निशाना तक के सतगुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज दे उत्ते राजा हरी चंद ने दूसरा वार किया। वो कलगीधर पातशाह दे कन दे कोलों दी लंघ गया, घोड़े नूं छूह नहीं सकिया। सतगुरु पातशाह कन दे कोलों वो जिहड़ा तीर अगे लंघ गया। हरी चंद राजा हैरान हो रहा कि अज मेरे तो की हो रहा है। मैं बड़ा बहादुर बड़ा निशानची हाँ, निशाना मेरा कदे खाली नहीं गया, पर अज की हो रहा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अगे मेरी कोई पेश नहीं चल रही है। दूजा तीर छड्डिया ते वो भी तीर खाली चलिया गया। हुण डर है, खौफ पैदा हो गया कि हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज वार करनगे। ते कलगीधर पातशाह महाराज अगों खिड़खड़ा के हसदे ने, कहन लगे हरी चंदा बड़ा बहादुर समझदा अपने आप नूं, दो बार कीते दोनों बार खाली चले गए, चल असीं तैनूं तीजा मौका होर दिंदे आ। देखो किन्नी दया सतगुर दे मन च। कहन लगे मन च भुलेखा कढ लवीं, तैनूं तीजा मौका दिंदे आ, तू हुण तीजा वार साडे उत्ते करना कर ते असी बाद विच तैनूं जवाब देवांगे। ते राजा हरी चंद खुश बड़ा होया, कहन लग्या हुण तीजा निशाना तो मेरा पक्का लगेगा। फिर मन च विचार करदा, पहला मैं सतगुर दे सीने दा वार, सीने उता निशाना तक के वार कीता, वो सतगुरां दे सिर तों उत्तों दी तीर लंघ गया। दूजा जदों वार कीता मैं घोड़े दा निशाना तक के वो सतगुरु महाराज दे कन दे कोलों लंघ गया। तो सोचदा कि हुण मैं बिल्कुल थल्लियों वार करना कर, जे मेरा तीर उतां नूं गया तो सतगुरु कलगियां वाले पातशाह नूं जाके जरूर लगेगा। कहंदे ने उस समय गुरु सरे पेट का निशाना तक के राजा हरी चंद ने तीजा वार किया ते कलगियां वाले पातशाह ने अपने कमर कस्से उत्ते ते एक चमड़े की पेटी बनी हुई सी। जदों वो तीर लग्या ते तीर लग के गुरु सवारियो थोड़ी जी चुंझ कलगीधर पातशाह महाराज दे जाके पेट विच लगी है ते थोड़ी जी लहू की धार वगी है। ते कलगीधर पातशाह महाराज ने आखिया, फिर सतगुर की बाणी विच ही वचन आउंदे ने कि जबै बाण लाग्यो तबै रोस जागियो। थोड़ा जिहा वार लग्या ते सतगुर जी फिर उस वीर रस विच आ गए। ते पातशाह कहन लगे, हरी चंदा तै एक फकीर दी जिहड़ी है वीर रस नूं जगा दिता है। ठंडे तल विच फकीर दी जिहड़ी वीर रस उत्ते इस तरह बड़ी शांत सी
पर हुण तै जगाना कीती, हुण सावधान होना कर। क्योंकि राजा हरी चंद ने अपने शरीर नूं चंगी तरह संजो नाल ढकिया होया सी। संजो तो भाव है जिहड़ा जदों जंग युद्ध पुराने समय हुंदे सन ते लोह टोप अपने शरीर उत्ते पहन लेना ताकि दुश्मन कोई वार करे, वो वार शरीर नूं गुरु साहिब अगे फटण ना कर सके। राजा हरी चंद हुण सावधान होया। कलगीधर पातशाह महाराज ने अपने भत्थे जो तीर कढ़िया है ते हरी चंद अपने शरीर व संजोग वाल देखदा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे कित्थे तीर मारनगे। निशाना जाके लग्या भी ते मेरे संजोग ना आके रोक लेना है। कहते ने उस समय कलगियां वाले पातशाह महाराज ने एक तीर छड्डिया। तीर छूकदा होया आया, कंन दे कोलों थोड़ी जी थां नंगी सी ते उत्थे आके गुरु सवारे 7 तीर लग्या ते हरी चंद घुमेड़ियां खांदा होया घोड़े तो थले डिग गया ते उसे समय कलगीधर पातशाह तीर नाल खत्म हो गया सी। एक बार दे नाल गुरु कलगियां वाले पातशाह ने राजे हरी चंद नूं खत्म कर दिता। जदों हरी चंद राजे दी मौत होई, खत्म हो गया ते बाकी 22 धार दे जिहड़े राजे सन वो मैदाने जंग नूं छड्ड के अपने आप ही भज गए सन। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज एडे वड्डे योधे सन, बलवान सन, जिन्हां दे एक तीर दे नाल गुरु दे कई खत्म हो जाते सन। पर आप जी नूं पहलां भी कई बारी दास ने बेनती की है कि सतगुरु जी का मारन विच भी परोपकार सी। परोपकार तेरे गुण बहुते ते कहंदे इस तरह परोपकार किवें करदे सन। कलगीधर पातशाह महाराज दे तीर नूं 1.25 तोला सोना लग्या हुंदा सी। जदों सतगुरु दुश्मन उत्ते तीर छड्डदे सन, जे दुश्मन चढ़ाई कर जांदा सी ते उहदी अंतिम क्रिया वो 1.25 तोला सोना बेच के उहदी अंतिम क्रिया की जा सकती सी। जे दुश्मन जख्मी हो जावे, उसे तीर दे विचों वो सोने नूं कढ़ के बेच के जख्मी हालत जिहदा शरीर का इलाज करवाया जा सकता सी। ते इस तरह सतगुरु मारन विच भी गुरु साहिब बख्शिशां करदे सन। ऐसे दीन दयालु सतगुरु जिन्हां दा आपां कल प्रकाश पुरब मना के हटे हाँ ते सतगुरु धन गुरु अमरदास पातशाह इत्थे बचन करदे हन। कहंदे जदों वो वाहिगुरु आप बख्शिश करदा, रहमत करदा, कहंदे फिर दे वडियाई अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ फिर वडियाई दिंदा है, मान सन्मान दिंदा है। फिर उन्हां ਨੂੰ गुरमत ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ है। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ, ਇਹ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਲਹਿਰ शब्द निवारी एह मन निर्मल होमै मारी। गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते माया लहर लोभ लहर अत नीजर वाजै काया डूबै केशवा। लोभ लालसा रूपी लहरां जिहड़ियां जीव दे अंदर पैदा हो रही हैं, माया विच गलतान होने करके हर समय जीव कहता हाय माया हाय माया। पर गुरु सवारिओ परा लब्ध अनुसार जीव नूं ये माया प्राप्त हुंदी है। जिहदे भागा जिन्नी को लिखी है ना उन्नी को मिलनी है। पर मनुख की आदत है कोट जोरे लाख करोरे मानना होरे परै परा कुलूजी है तृष्णा बिरले ही की बुझी है। किसे बेले की तृष्णा बुझदी है। अरबां खरबां पति जीव क्यों ना बन जावे, फिर भी गुरु सरे इन्हां जीवां की भुख नहीं मिटदी है। बड़े बड़े राजे बादशाह बन जाण फिर भी तृप्त नहीं होंदे।
देखो साडे किसान वीर किन्ने लम्मा समा हो गया आदि सर्दी दे विच धरती दिल्ली की धरती सड़कों उत्ते बैठे हुए ने, मीह पैंदा है सर्दी पैंदी है, शरीर उत्ते हंडारे हैं, ते कई साडे किसान वीर जिहड़े ने वो शहादत दा जाम भी पी चुके ने, शरीर त्याग चुके हैं। बड़े मौके दे हुक्मरान ने, ये तृष्णा है मन दे विच उन्हां दे, कोट जोरे मन ना होरे परै पर गुजी है। मौके दी सरकार दे उत्ते बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। कानून बनाना कीते ने काले कानून जिन्होंने आपां कह दईए, जे किसानां नूं नहीं पसंद है तो वापस लेने चाहिए हैं, पर लेवे किवें? क्योंकि अडानी अबानी पासों माया लैना कीती है, उधरों माया दे गफ्फे लेना कीते ने, हुण वापस किवें लवे? इस तरह की गुरु सर सोच है लोगों की। राजे का अर्थ हुंदा रजिया होया, जिन्होंने किसी प्रकार की भुख नहीं हुंदी है। राजा अपनी प्रजा की पालना करता है, पर इत्थे जिहड़े राजे ने गुरु सवारे, ये राजे इहो जिहे हो गए ने जिहड़े प्रजा का खून चूस रहे हैं। सतगुरु महाराज किरपा करन, कलगीधर पातशाह के चरणों च बेनती करिया करो कि हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, जिन्हें भी किसान मजदूर भरा अपना हक लैण दे लई दिल्ली की धरती ते पहुँचे हुए हैं, आप जी ने बख्शिश करनी, पातशाह उन्हां दी पत इज्जत रखनी, उन्हां दे अंग संग वरतना, ते आप गुरु पातशाह फिर बख्शिश करके अंग संग वरतनगे। सो सतगुरु महाराज बख्शिश करते हैं। कहते इस तरह मनुख की जिहड़ी तृष्णा है ये बुझदी नहीं है। माया दियां लहरां दिनों दिन जीव दे अंदर वधदियां जांदियां पैदा हुंदियां हन। कि सतगुरु ये माया की लहर शांत हो सकती है? तो कलगीधर धन गुरु अमरदास पातशाह कहते हाँ भाई शांत हो सकती है। सतगुरु किवें शांत होनी है? तो पातशाह कहते शब्द नाल जुड़ के, शब्द का सहारा लैके, शब्द ने ही कहते उस लह माया लहर शब्द निवारी, शब्द ने ही कहते वो माया रूपी लहर जिहड़ी है निवारी खत्म करनी है। जिन्हें शब्द का टेक आसरा ले लिया, उहदे अंदरों फिर गुरु सवारे ये माया की लहर खत्म हो जाती है। उहदा मन बिल्कुल शांत हो, जदों वो शब्द का टेक आसरा लैके पढ़दा सतगुरु महाराज के बचन कि माया मनो न बीसरै, मंगै दम्मा दम, सो पर चित न आवे, नानक नहीं करम। ये माया बाणी पढ़ी है, शब्द आसरा लिया कि मेरा गुरु तो ये कह रहा है कि इनू प्राप्त करके जीव नू फिर कहते वो परमेश्वर चेते नहीं आ रहा, प्रभु चेते नहीं आ रहा। फिर कह वो फिर शब्द का सहारा लैंदा, शब्द नाल जुड़दा कि नहीं मैनू गुरु चाहिदा है, मैनू गुरु दीयां खुशियां चाहिदियां, परमेश्वर दीयां खुशियां चाहिदियां हन। माया तो परा लभद अनुसार मेरे मालक ने मैनू अपने आप ही दे देनी है। लोड़ अनुसार जदों गुरु सवारियो किसी का भी अज तक कारज नहीं रुकिया, ये सच है। वखरी गल है, संसार दे विच आपां कार विहार करते हैं, बच्चियां दी शादी है ते होर जिहड़े कारज ने वो वखरी गल है। कईयां नूं अपने घर दे जिहड़े कारज करन लई मेहनत मशक्कत करनी पैंदी है, पर चाहे कोई अत दा गरीब है चाहे अमीर है, किसी का कारज परमात्मा रोकदा, समय अनुसार हर एक दे कारज हो जाते हैं। पर सतगुरु कहते इस माया की लहर नूं गुरु का शब्द ही एक ऐसा जिहड़ा इहनूं खत्म कर सकता है। कहते शब्द नाल जुड़ भाई,
शब्द नाल जुड़न दे नाल ये माया की लहर जिहड़ी है ये खत्म हो जानी है। इहो मन निर्मल होमै मारी। सतगुरु जी फिर मन शुद्ध किवें हो सकदा? मन तां मैला ना, मैले मन नूं साफ करना होवे किवें साफ कर सकदे आ? भांडा लिबड़िया होया, भांडा जूठा है, भांडी नूं आपां साबण नाल धोवांगे, भांडे नूं आपां रेते नाल सुੱਕ मांज कर लवांगे, पर पातशाह जी जिहड़ी अंदर मैल है, मन मैले नूं किवें धोता जावेगा? ते सतगुरु कहंदे सब तो पहलां तू अपने अंदरों होमै नूं मारना कर। जो तेरे अंदरों होमै मर गई, होमै खत्म हो गई, फिर पातशाह कहंदे तेरा यह मन निर्मल, ये मन निर्मल हो जाएगा। क्योंकि होमै मारनी बड़ी औखी है। मनुख दे अंदर दिनों दिन जिहड़ी ये होमै वधदी जांदी है। कोई बिरला ही है जिन्हें इस होमै दे उत्ते कंट्रोल किया है। तो गुरु पातशाह ने इस होमै नूं दीर्घ रोग आखदा कि होमै दीर्घ रोग है, बड़ा रोग है। पर नाल कहता कि दारू भी समाई होमै दी दवा भी है। किहड़ी दवा है? किरपा कर जिस अपनी ता गुर का शब्द समाहे। जिहदे उत्ते मालिक किरपा कर दे, रहमत कर दवे, ਉਹਦੇ अंदर फिर गुरु का शब्द समा जाता। जो शब्द ना जुड़ गया, शब्द अंदर समा गया, तो होमै अपने आप ही मुक जाती है। तो मन नूं निर्मल करन दे लई सानू अपने अंदर होमै नूं खत्म, होमै की है? मैं हाँ। इस मैं नूं खत्म मुकाना। जो तक मैं नहीं मुकदी उदों तक साडे अंदरों ये साडा मन निर्मल नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता है। सहजे गुण गावै रंग राता, रसना राम रबीजै हे। सहजे गुण गावै रंग राता। कहते भाई सहज वाली अवस्था जिहड़ी आत्मक अडोलता वाली अवस्था, जिथे मन कदे डोलदा नहीं है, उस सहज वाली अवस्था दे च पहुँच के गुण गावै रंग राता। उस मालक दे जिहड़ा गुण गाउंदा ना, उस मालक दे रंग विच राता तदाकार हो जाता है, मस्त हो जाता है। फिर रसना राम रबीजा है। कदे भी अपनी रसना नूं अजाई नहीं जाण दिंदा। इस रसना दे नाल किसी दी चुगली नहीं करदा, किसी दी शान दे खिलाफ नहीं बोलदा। इस रसना दे राही हर समय मालक दी उस्तत करदा, वडियाई करदा है। उस मालक दे गुणां दा गहन ही करदा है। मेरी मेरी करत बिहाणी, मन मुख ना बूझै फिरै इयाणी। जीव इस्त्री बार बार मेरी मेरी करदी होई अपनी उम्र नूं बिहाणी बतीत कर रही है। मनमुख ना बूझै फिरै इयाणी। पर बेसमझ जीव, मनमुख जीव जिहड़ा है, कहंदे इहनूं किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, सोझी नहीं है। इयाणी बन के, बुरानी झल्ली बन के, कहंदे अणजान बन के इस तरह संसार विच ये फिर रही है। हर समय मेरी 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 कैरों करते, दुर्योधन से भाई। 12 जोजन छत्र चलै था, देही गिरजन खाई। वो दुर्योधन जैसे जिहड़ा कहंदा सी जदों कैर पांडव सब कुछ जुए विच हार गए। श्री कृष्ण जी उस समय मौके दे अवतार सन। श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन नूं आखना कीता कि दुर्योधन देख, ये जिन्ने भी कैर पांडव ने, चाहे भीम चंद है, ये पंजे भरा ने, है तां तेरे तुसीं ताए चाचे दे लड़के ने ना, भरा भरा होए ने,
कोई गल नहीं जे राज भाग हार गया, तू अपने जान के इंज कर, इन्हां दे गुजरान लई 2 पिंड देना कर। 2 पिंड दे दे ताकि वो 2 पिंडां दे विच अपना परिवार दा वो गुजरान कर सकण। ते दुर्योधन ने अगों उत्तर देना कीता सी, श्री कृष्ण जी नूं कहण लग्या, भगवान जी तुसीं 2 पिंडां दी गल करदे हो, मैं तां 2 गिठ धरती भी ना लोकां नूं नहीं दवांगा। 2 गिठ धरती। पर गुरु सवारियो देखो, वो मेरी मेरी करन वाले जिहड़े दुर्योधन जैसे वो भी संसार तो चले गए। उन्हां दीआं धीआं नूं गिरजा ने खाना कीता। ते सतगुरु महाराज इत्थे बचन करते हैं, ये मेरी मेरी करके ही जीव दा जिहड़ा है परमात्मा नाल बिथ दिनों दिन वधदी जा रही है। इस तरह ही अपनी उम्र सारी उम्र बतीत कर ली। बेसमझ जीव इस्तरी, मनमुख जीव इस्तरी इस गल नूं बुझदी नहीं है, जानदी नहीं है, इनूं ये नहीं पता। अगली पंक्ति च पातशाह बख्शिश करते हैं, जम काल घड़ी मोहत निहाले, अन दिन आरजा शीजै है। गुरु पातशाह बख्शिश करते हैं, कहते जम काल जिहड़ा जम है, कहते ये घड़ी मोहत बार बार जीवल देख रहा, अन दिन दिन रात करके जीव जी आरजा शीजा है खत्म होंदी जा रही है। वो देखदा कि कदों इहदी स्वासां रूपी पूंजी मुक्के ते मैनूं दबोचना करा, क्योंकि जिहड़े साडे जिहड़े उम्र है सारी अवध है ये घटदी जा रही है। अवध घट है दिन सरै नारे, मन गुरमिल काज सवारे। दिन ते रात करके साडी अवध घटती जा रही है। ताइयों भगत कबीर साहबान जी बचन करते हैं कि दिन ते पहर, पहर ते घड़ियाँ, आंब घटै तन शीजै, काल अहेरी फिरै बदक जियो, कहो कवन बिद कीजै, सो दिन आवण लागा, मात पिता भाई सुत बनता, कहो कऊ है काका। कहते इस तरह भाई तेरी अवध घटती जा रही है। वो दिन तेरे नेड़े आ रहा है जिथे अज तू माण करदा फिरदा कि मेरे माता पिता ने, मेरा भैन भरा हन, मेरे ताए चाचे हन, मेरे पुत्र धीआं हन। ते सतगुरु कहते ने कहो कऊ है काका। उदों इन्हां च कोई भी नहीं होवेगा, कोई नाल निभण वाला नहीं, ना ताए चाचे, ना माता पिता, ना भैन भरा। संबंध इन्हां दा उदों तक है वध तो वध अंतम संस्कार तक, ते वध तो वध भोग तक। भोग वेले सारे कुटुंब परिवार इकट्ठा होवेगा, रिश्तेदार इकट्ठे होणगे, मित्र सज्जन इकट्ठे होणगे। जदों गुरु साहिब अंतम अरदास ग्रंथी सिंह ने कर दिती कि सच्चे पातशाह फलाना सिंह या फलानी कोर चढ़ाई की है, आप जी ने चरणा च निवास बख्शिश करना, परिवार नूं भाणा मनन दा बल बख्शिश करना। हुक्मनामा सब होया, देग वरती, लंगर छकिया, चाह पानी छकिया, फिर अपने अपने घर नूं वापस। उत्थों तक संबंध असल विच हौली हौली फिर साथ जिहड़े बिल्कुल जिहड़े नेड़े भी हुंदे ने ना, वो भी फिर हौली हौली पिछे हट जाते हैं। बिपत परी सब ही संग छाड़त, कऊ ना आवत नेरै। जिउंदियां जी ही संबंध हन, मरण तो बाद सारे संबंध गुरु सारे खत्म हो जाते हैं। इस करके सतगुरु कहते भाई तू मेरी मेरी करदा फिरदा, तेरी उम्र तेरी आवत जिहड़ी बतीत हुंदी जा रही है, जिहड़ा जमकाल है ना, कहते वो तेरे बिल्कुल कोल खलोता होया, तैनूं दिखाई नहीं दे रहा, आपां नूं सानूं देख रहा, आपां की कर रहे हैं। चित्र गुप्त लिखते लेखा, चित्र गुप्त जिहड़े जो जो आपां कर्म करदे ना, वो गुप्त दा अर्थ जिहड़ा गुप्त रूप विच
जो कर्म कर रहे साडियां तस्वीरां खिच्ची जा रहा, साडे कीते हुए कर्मां दियां वो फोटोआं बनदियां जा रही ने। जदों फिर जीव का इत्थों संसार तो जाण का समा हुंदा जांदा है, मालक की कचहरी लगती है, उदों जीव कहता कि मैं आ काम नहीं किया। तो यही चित्र जिहड़ा गुप्त रूप च वरतदा सी, कहंदे आ देख फलाने समय आ काम किया है, इत्थे ते चोरी की है, ठगी की, इत्थे ते झूठ बोलना किया है, तो इत्थे आ माड़ा काम किया है। उदों मुनकर नहीं हो सकता, उदों जीव नूं फिर मनना पैंदा कि हाँ मैं ये काम कीते ने। तो इस करके वो गुप्त रूप साडे कोल ही हर समय रह रहा है, अड़ीक कर रहा कि कदों स्वासां रूपी पूंजी खत्म होवे ते कदों फिर मैं इस जीव नूं दबोचना करा। ते सतगुरु कहंदे वो जिहड़ा हर समय घड़ी मोहत निहाले, हरेक घड़ी हर मोहत वो निहाले देख रहा है। ते अन दिन आरजा छीजै है, जीव की आरजा ना दिन रात करके ये छीजी जा रही है, जीव का शरीर कमज़ोर होंदा जा रहा है। इस तरह उम्र जिहड़ी लंघदी जा रही है, ये गुरु सवेरे सतगुरु महाराज ने कृपा की है। चार बंदा की पातशाह ने विचार करवाई है, बाकी रहिंदे शब्द की विचार आपां कल वाले दीवाना च करांगे। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। आओ अगलियां पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। अंतर लोभ करै नहीं बूझै, सिर ऊपर जमकाल न सूझै, ऐथै कमाणा सो अग्गै आया, अंत काल क्या कीजै हे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।